Good morning, students. Hope you understand the various causes of variation, that is, the variation due to chance or variation due to assignable causes. Okay, in due to chance means it is inherent in your manufacturing process. But if it is due to assignable cause, you have to identify what are the cause and you have to rectify that. Now, to identify these variations, we have a descriptive statistics. In descriptive statistics, you need to calculate the mean. Mean means average of the variations, then the range, जो आपको वेरिएशंस बताता है, जो आपकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस जो है डेटा की डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में. एंड देन अनदर मेजर इज स्टैंडर्ड डिविएशन, कि मीन से आपका जो वेरिएशन है वो कितना है. ठीक है, कितना आप डाइवर्ट हो रहे हैं वो आपको बताता है स्टैंडर्ड डिविएशन. देन सी हियर, if the range is small, if range is small, the observation is closely clustered to the mean. आप देख रहे हैं ये कि मीन के आसपास ही क्लस्टर कर रहा है. एंड इफ लार्ज वैल्यू ऑफ रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मीन जो है वो आपका जो है इसमें स्प्रेड आउट हो जाता है. अब देख रहे हैं मीन से कितना ज़्यादा दूर है, स्प्रेड है ये, दैट इज़ अ लार्ज. क्लियर. एंड दिस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल in statistical process control method. Statistical process control method extended the use of descriptive statistics to monitor the quality of the product and the process. As you know, there are a common and assignable cause of the variation in the production of every product. Using statistical process control, we want to determine the amount of variation that is common or normal. Then we monitor the production process to make sure production stay within a normal range. That is, we want to make sure process is in a state of control. So descriptive statistics help us to determine that in a statistical process control. And the most common used tool for monitoring the production process is control chart. And different types of control chart are used to monitor different kinds of production process. Now the control chart that we are talking about, control chart are also called a quality control chart or process chart, is a graph that shows whether the sample of data fall within a common or normal range of variation. And this was first developed by Dr. Walter of AT&T Bell Laboratory in 1924. The control chart has an upper and lower limit that separate the common from assignable cause of variation. The common range of variation is defined by the use of control chart limit. We can say the process is out of control when we plot a data reveals that one or more sample fall outside your control limit. Clear? See here the control chart for apple fizz. This figure shows the control chart of apple fizz bottling operation. Okay, in x-axis represent the samples 1, 2, 3, etc. and taken from the process over a time. The y-axis represents the quality characteristics that is being monitored. The CL, that is a control chart, is the mean average of the quality characteristics that being measured. Okay, see here, this is you are checking the quality कि आपकी जो फिज बॉटल है उसमें कितना क्वांटिटी आपके फिज है. ठीक है, this bell shape, this horizontal chart is the you can say the bell shape curve जो हम यूज़ करते हैं क्वालिटी कंट्रोल दिखाने के लिए, like this.
दिस, इसका हॉरिजॉन्टल वर्जन ही हमारा कंट्रोल चार्ट है। ओके, सी हियर, ये आपका कंट्रोल चार्ट जिसमें आपने एक्स एक्सिस में तो सैंपल्स दिखा दिए, दीज आर द सैंपल्स एंड दीज आर द कि कितनी उसके अंदर आपकी वाई एक्सिस में क्या दिखा रहे हैं आप लोग, उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, आपने पहले उसका एवरेज निकाला, एवरेज इज 200, दैट इज योर सेंट्रल लाइन सी एल। अब सी एल से कितना वेरिएशन आप अलाउ करेंगे, दैट इज ड्यू टू चांस, दैट इज अपर कंट्रोल लिमिट कितना ज़्यादा हो सकता है आप अलाउ कर देंगे। आपने कहा 5%, तो आपने कैलकुलेट करा, आपने देखा 202, अगर 202 मिलीलीटर तक है बॉटल में तो इट मीन्स इट इज़ ओके। एंड मिनिमम कितना आप उसे अलाउ करेंगे कि कम हो जाए, तो 198, तो इट मीन्स 198 तक अगर होता है तो भी आप ऐसा अलाउ कर सकते हैं। तो मीन्स अब आप बॉटल्स को, सैंपल्स को चेक करेंगे, अगर बॉटल्स इसके अंदर लाई करेंगी, जैसे आप रेड डॉट्स देख रहे हैं, तो इट मीन्स प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। और जब आपकी ये वाली जो कंट्रोल फेज है ये आपकी बाहर आ गई, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल और इसमें कोई असाइनेबल कॉज है। अब आप वो कॉज आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये बाय चांस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से डिफेक्ट नहीं आया है। यू नीड टू चेक दिस। ओके, तो कंट्रोल चार्ट्स आपको इस तरीके से हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि वेदर प्रोसेस अंडर कंट्रोल और नॉट। क्लियर? एंड see here, the upper and lower control limit of control chart are usually set at plus minus 3 SD from the mean। आपको 6 सिग्मा याद होगा, तो उसमें भी आपका क्या है 3, मीन्स इधर 3 प्लस इधर 3 माइनस, दोनों इंक्लूड करा तो इक्वल्स टू 6। ओके, तो 6 सिग्मा फॉर क्वालिटी कंट्रोल हम फॉलो करते हैं। और if we assume that data exhibit normal distribution, this control limit capture 99.74% of the normal variation। अगर आपको लगता है कि ये बेल शेप का नॉर्मल कर्व है और इसने सारे वेरिएशंस को कंट्रोल कर लिया है, तो वो आपका 99.74 वेरिएशंस को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर कंट्रोल लिमिट्स जो है कैन बी सेट एट प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन, in case control limit will capture only 95.4% of the value। see here, 95.44% of the value वो आपकी कैप्चर कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आपकी कितनी वैल्यू कैप्चर हो जा रही है, आप कितने ज़्यादा सैम्पल्स आपने कैप्चर कर ले रहे हैं अपनी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर? नाउ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स दैट वी आर यूजिंग हियर। Control charts are one of the most common used tool in statistical process control, and they can be used to measure any characteristics of a product, such as weight of the cereal box, number of chocolate in a box, volume of the bottle, ठीक है, and the different characteristics that can be measured by control chart can be divided into two groups. One is your variable and second is your attribute, and for both the control chart differ. The control chart for variable. A control chart for variable is used to monitor the characteristics that can be measured and have a quantum of value such as height, weight, volume। ठीक है, जब आप किसी की क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं कि भाई ये कितना लंबा है, ये इसका वेट कितना है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का हमने किया बॉटलिंग ऑपरेशन में, ठीक है, कि कितनी उसमें कितना वॉल्यूम है, बॉटल में कितना लिक्विड उसके अंदर है, या फिर शुगर बैग्स आप ले रहे, ठीक, कितना वेट है, तो ये सब हमारे क्या है वेरिएबल्स है दैट कैन बी मेजर्ड इन अ न्यूमेरिकल टर्म। देन वी हैव अ कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। A control chart for attribute is used to monitor the characteristics that have a discrete value, and often they can be evaluated with the simple yes or no decision। Okay, attributes means जिन characteristics को आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, मेजर नहीं कर पाते हो, बट आप उसमें ये बता सकते हो कि अच्छा है या बुरा है, गुड और बैड, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, अगर सपोज आपको मैंने कहा एप्पल है आपके सामने और एप्पल ये अच्छा है या बुरा है आप बता सकते हैं, इट इज़ गुड और बैड, बट ये नहीं बता सकते ये 20 गुड है, 30 गुड है, 40 गुड है। ठीक है,
तुम्हें जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हो लाइक कलर, टेस्ट, स्मेल, तो इट इज़ अ एट्रीब्यूट. The monitoring of attribute usually take less time than the variable because variable need to measure कि भाई बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक में कितना लिक्विड है, आप उसे मेजर करने के लिए टाइम चाहिए. पर एट्रीब्यूट रिक्वायर ओनली सिंगल डिसीजन सच एज येस, नो, गुड, बैड, acceptable, not acceptable. Okay, now these are the control charts that we used in different types. इफ़ वी हैव अ वेरिएबल्स मीन्स आप मेजर अगर कर सकते हैं तो आप जो है मीन चार्ट, रेंज चार्ट और आपका SD चार्ट, आप तीनों चार्ट यूज़ कर सकते हैं. अगर आपका एट्रीब्यूट है तो यू कैन यूज़ अ P चार्ट, NP चार्ट एंड C चार्ट. क्लियर? नाउ द मीन चार्ट. Mean chart control chart is a chart for the variable. Mean control chart is often referred to as an X bar chart and it is used to monitor the changes in the mean of the process. आपकी between the process जो है क्या changes आ रहे हैं उसको check करने के लिए, उसे monitor करने के लिए हम mean chart use करते हैं. And to construct a mean chart we need to construct a central line of the chart. And to do this we take a multiple samples and compute their mean. And after calculating the mean, you can calculate the upper control limit and lower control limit with the help of these formula. Okay, mean plus A2 R mean. ठीक है, रेंज. तो आप यहाँ पर रेंज को हम यूज़ कर रहे हैं for calculating upper and control limit. A2 is a constant value which depend upon the sample n. जितना सैम्पल होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास टेबल होती है कांस्टेंट की, वहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हैं वैल्यू A2 की. क्लियर? एंड जब आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो इट मीन्स दिस इज़ द अपर लिमिट, दिस इज़ द लोअर लिमिट एंड दिस सेंट्रल लिमिट. अब आप सारे ऑब्जर्वेशंस को ग्राफ में बनाते हैं. अगर वो आपकी इन दो लाइंस के अंदर ही है तो इट मीन्स प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल. क्लियर? देन वी हैव अ रेंज चार्ट where X bar chart measure a shift of central tendency of the process. Range monitor the depression or a variability of the process. कि आपके प्रोसेस में कितनी वेरिएबिलिटी है वो हम रेंज से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप रेंज कैलकुलेट करते हैं और रेंज जो होगा आपका एवरेज रेंज जो होगी वो आपकी सेंट्रल लाइन होती है. फिर आप कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. यहाँ पर अगेन D3 and D4 is the constant which depend on the sample size like this. These are the table जो आपने मीन में यूज़ किए A2, ठीक है, एक्स चार्ट के लिए, और रेंज चार्ट के लिए जो आप यूज़ करते हैं D3 and D4 and it depend upon the sample size. Clear? Now when to calculate this. देखिए, अ प्रोसेस इन कंट्रोल अगर है तो हमें कोई चार्ट की ज़रूरत नहीं होती. एंड इफ़ एक्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, अगर आपका मीन आउट ऑफ कंट्रोल है बट SD आपके कंट्रोल में है तो आप सिंपल एक्स चार्ट बनाते हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन अगर कंट्रोल में, इफ़ आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कंट्रोल में नहीं है बट आपका मीन कंट्रोल में आ रहा है, ठीक है, जो आपने कंट्रोल चार्ट बनाया, तो आप आर चार्ट की हेल्प लेते हैं. अगर आपकी दोनों ही चीज़ आपका मीन और आपका SD कंट्रोल में नहीं है तो हम जो है एक्स एंड आपका ये सॉरी मीन एंड रेंज चार्ट ये दोनों बना के देखते हैं कि आपकी प्रोसेस अंडर कंट्रोल है या नहीं. थियोरेटिकली SD इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी क्योंकि रेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों ही हमारी वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, और SD बहुत अप्रोप्रिएट माना जाता है. बट टू अवॉइड अ कॉम्प्लिकेशन in the calculation, quality control range is used to measure the depression in place of SD. ठीक है, इस वजह से हम लोग जो है SD चार्ट की जगह R चार्ट या फिर रेंज चार्ट आप यूज़ करते हैं. मीन चार्ट tells the process is under control but confirm it by the range chart. Okay, range chart which tell about the control of variability. Hope you understand this. In next class, we will cover other charts. Thank you for the day, students.